Assalamu alaikum, namaste dear students. In this lecture we will explore the class Spermopsida known as seed bearing plants. आज के लेक्चर में हम क्लास Spermopsida को डिस्कस करेंगे. Dear students, Spermopsida are also called Spermatophyta. Sperma means seed, phyton means plant, seed producing plants. This class comprises all the seed bearing plants. They produce seeds through flowers or cones. Dear students, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो वो अपने सीड फ्लावर्स से प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वो अपने सीड्स कोन्स से प्रोड्यूस करते हैं. इनके कोन्स में या फ्लावर्स में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ओव्यूल्स. Their immature seed is called ovule and after fertilization ovule changes into seed. मगर जिम्नोस्पर्म में ये ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, उनके अराउंड ओवरीज एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं. और एंजियोस्पर्म में इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरीज में एनक्लोज होते हैं. सो एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस सीड्स विद इन फ्रूट्स बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. तो दो ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स स्पर्मेटोफाइटा में. नाउ स्पर्मोप्सिडा आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मा मीन्स सीड, फाइटॉन मीन्स प्लांट, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. इनको दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है. जिम्नोस्पर्मेटोफाइटा आल्सो कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स and Angiospermatophyta also called Angiosperms. Dear students, Gymnosperms means naked seeds and Angiosperms means covered seeds. Gymnospermatophyta and Angiospermatophyta together compose the class Spermopsida, also called Spermatophyta, seed bearing plants. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को. The word gymnosperm literally means naked seed, as gymnosperms ovules or immature seeds are not enclosed within ovary. इनमें ovules तो पाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाते हैं, मगर उनके ऊपर ओवरीज एब्सेंट होती हैं. तो ये सीड तो प्रोड्यूस करते हैं मगर फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, और जिसकी वजह से इनके सीड्स ओपन होते हैं, नेकेड होते हैं. एंड एंजियोस्पर्म्स मीन्स हिडन सीड्स और कवर्ड सीड्स. The word angiosperm means covered seeded plants or covered seeds, as they enclose their ovules, seeds within ovary. After fertilization, ovule changes into seed and ovary changes into fruits. So they produce both fruits as well as seeds. अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के. Now, few examples of Gymnospermatophyta, gymnosperm, naked seeded plants. These are the examples of gymnosperms: conifers, cycads, ginkgo and gnatophytes. They produce naked seeds. All these are the examples of gymnosperms. अब हम आते हैं examples की तरफ जो कि हम पढ़ेंगे angiosperms के. Now fruits trees including mango, apple, banana, peach, orange, etc. They produce seeds within fruits because their ovules are covered by ovaries. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें या एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो दोनों में जो डोमिनेंट जनरेशन होता है वो स्पोरोफाइट, और दोनों में जो रिड्यूस जनरेशन होता है वो गेमेटोफाइट. तो अब हम इनके जिम्नोस्पर्म्स के, एंजियोस्पर्म्स के स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को डिस्कस करेंगे. नाउ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ Spermophyta, also known as gymnosperms and angiosperms. In seeded plants, the main or dominant generation is sporophyte, long-lived photosynthetic, which occupies major portion of the life cycle. अगर हम gymnosperms की बात करें तो dear students देखें उसके sporophyte के कौन से parts हैं. In case of gymnosperms, their sporophyte is differentiated into root, stem, leaves and reproductive organ, seed producing organ known as cones. इसका famous example pinus plant है. For example, in pinus, this is the diagram showing pinus. Its reproductive organs are cones, pine cones. pinus plant में मेल कोन भी पाए जाते हैं, फीमेल कोन, और फीमेल कोन पे ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाद में डेवलप हो जाते हैं सीड्स में, और इनके ओव्यूल्स नेकेड होते हैं जिसकी वजह से इनके सीड्स भी नेकेड होते हैं.
और अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स की तरफ। अगर हम उसके स्पोरोफाइट की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की, सो द स्पोरोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म is differentiated into root, stem, leaves and flowers. Here the reproductive organs are flower. देखिए हम parts पढ़ेंगे angiospermic flower के. This is the diagram showing an angiospermic flower. These are non-reproductive leaves known as sepals, and sepals are collectively called as calyx, and these are non-reproductive leaves petals, and petals are collectively called as corolla. मगर अब हम आते हैं इस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव लीव्स की तरफ या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेंस, एंड स्टेमेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम. डियर स्टूडेंट्स, स्टेमेंस से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आगे चल के मेल गेमेटोफाइट पोलन ट्यूब में डेवलप हो जाते हैं. एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल. कार्पेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज गायनोशियम. अगर हम कार्पेल की बात करें तो उनके 3 पार्ट्स हैं. टॉप पे एक स्टिकी नॉब है. दिस स्टिकी नॉब इज नोन एज स्टिग्मा. देन देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक एक्सटेंशन. दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्टाइल, एंड स्टाइल लीड्स इनटू द ओवरी. This is the ovary of carpel. After fertilization, ovary changes into fruit, and you see inside the ovary there are ovules. In ovules से seeds develop होते हैं. So their ovules are covered by ovaries. After fertilization, ovule changes into seed and ovary changes into fruit. So this is a sporophyte of Gymnosperm, having 4 parts, 4 main parts: root, stem, leaves and reproductive organs, cones. In case of angiosperm, the sporophyte is differentiated into root, stem, leaves and flower. और इसमें जो कार्पेल पार्ट है डियर स्टूडेंट, उससे ओव्यूल आगे चल के ये ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं. अब हम आते हैं इनके गेमेटोफाइट की तरफ. देयर गेमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड इन साइज एंड रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मेल गेमेटोफाइट पोलन ट्यूब है. Their male gametophyte is pollen tube because it produce and it carry sperms, male gamete. This is the pollen tube of pinus plant, जो कि एक gymnosperm है. This is a diagram showing pollen tube in pinus, and here you see the 2 male gametes, 2 sperms, and these male gametes are non-motile. इनमें जो gametes हैं उनमें flagella नहीं होते, non-motile होते हैं. तो एक तक उनको कौन कैरी करता है? pollen tube is carrier of sperms. और अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट्स फीमेल गेमेटोफाइट फॉर एग्जांपल इन पाइनस इज विथ 2 to 5 आर्चिगोनिया. ये 2 से 5 आर्चिगोनिया पे मुश्तमिल होता है. हियर यू सी आर्चिगोनियम 1, हियर यू सी आर्चिगोनियम 2, हियर यू सी आर्चिगोनियम 3. क्या होता है कि पाइनस प्लांट में डियर स्टूडेंट्स जो मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक टिश्यू में. उसको क्या कहते हैं? फीमेल प्रोथेलस, जिसमें एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एंडोस्पर्म, जो कि हैप्लॉइड होता है. उसके बाद 2 से 5 आर्चिगोनिया होते हैं. ईच आर्चिगोनियम प्रोड्यूसेस एन एग, फीमेल गेमेटोफाइट. और आप यहाँ पे देखें कि पोलन ट्यूब डेवलप हो रहे हैं. ईच पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, टुवर्ड्स एग. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप पढ़ोगे कि जिम्नोस्पर्म में, और उसके बाद हम यही बात एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ेंगे कि स्पर्म्स नॉन मोटाइल हैं, तो स्पर्म्स वाटर पे डिपेंडेंट नहीं हैं. तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको कहते हैं सैफेनोगेमी. द फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस बाय पोलन ट्यूब इज कॉल्ड सैफेनोगेमी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में. दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन थ्रू एन ओव्यूल showing endosperm, archigonia and pollen tubes growing towards the archigonia. Male gametes reach the female gametophyte and the egg through a pollen tube. इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है सैफेनोगेमी. सीड प्लांट्स, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, have non-motile sperms, non-flagellated sperm. They do not swim, they do not require water. और इस एग तक जो स्पर्म्स ट्रैवल किए गए या पहुंचाए गए, किसकी वजह से? पोलन ट्यूब की वजह से. इसको कहते हैं सैफेनोगेमी. द स्पर्म्स आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द एग वाया एक्सटेंशन ऑफ पोलन ट्यूब. सो द फर्टिलाइजेशन बाय पोलन ट्यूब इज कॉल्ड सैफेनोगेमी. तो जैसा कि हमने इस स्लाइड पे जिम्नोस्पर्म का मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट को डिस्कस किया, बिल्कुल सेम वे में अब हम एंजियोस्पर्म्स के मेल गेमेटोफाइट
और फीमेल गेमेटोफाइट को डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स द मेल गेमेटोफाइट इज पोलन ट्यूब एंड फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियोसेक। ये मेल गेमीट स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ये फीमेल गेमीट एम्ब्रियोसेक एग प्रोड्यूस करेगा। अगर हम पोलन ट्यूब की बात करें, दिस इज द पोलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म, अगेन शोइंग सैफेनोगेमी, a type of fertilization in which the sperms are carried to the egg via pollen tube. Here you see sperm cells are non-motile और ये pollen tube vehicle है, इस sperms को carry करता है egg की तरफ। So external water is not required for the fertilization in gymnosperms and angiosperm दोनों में। In angiosperm, a pollen tube delivers non-motile sperm cells to an egg within embryonic sac, फीमेल गेमेटोफाइट, दिस इज कॉल्ड सैफेनोगेमी। तो डियर स्टूडेंट, सैफेनोगेमी दोनों में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म में, जिसकी वजह से कहा जाता है बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर सैफेनोगेमस, मींस दे एग्जिबिट or display saphenogamy, a type of fertilization which takes place through pollen tube। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स के फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोनिक सेक की तरफ। This is the diagram showing female gametophyte of angiosperm, embryo sac। आपको टॉप पे 3 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। Female gametophyte and embryo sac in case of angiosperm develops in the ovule of ovary, ये ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है। टॉप पे अगर आप देखें तो आपको 3 हैप्लॉइड सेल्स का ग्रुप नजर आएगा। These 3 haploid cells are called antipodals and the function of antipodals is unknown। और बीच में आपको मिडिल में 2 पोलर न्यूक्लियाई नजर आएंगे। In the middle there are 2 polar nuclei, they are also haploid। और जब इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से एक स्पर्म मिलता है तो ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू में। और नीचे जो 3 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं उनमें से एक सेल है, जिसकी वजह से इस एम्ब्रियोसेक को फीमेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। और जब एक से एक स्पर्म फ्यूज होगा ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके दोनों तरफ एक सिनर्जिड प्रेजेंट है। दिस इज वन सिनर्जिड सेल, this is another synergid cells। What is function of synergid cell? They guide the pollen tube to move towards the egg। So the ovules of both angiosperm and gymnosperm develop into seeds। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सीडेड प्लांट्स का। उसमें हमने दोनों एंजियोस्पर्म्स के और जिम्नोस्पर्म्स के स्पोरोफाइट के कैरेक्टर्स और गेमेटोफाइट के कैरेक्टर्स डिस्कस किए। टुमारो आई विल बी विथ यू टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। थैंक यू डियर स्टूडेंट।